جو اس ملک سے وفا کرے گا عزت اس ملک میں اسی نے پائی ہے. یہ جو ابھی وزیر ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہوا ہے, ہاں جی, یہ اس قابل نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا چیز ہوتی ہے. مہنگائی ہے, تہاڈی مہربانی ہے, جڑا بیٹھا رہے اینو کہو کو خدا دا خوف کرو. دھاندلی تو ہوتی رہے, یہ سارا کام ہے حکومت اور اپوزیشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سلام نیوز ایک دن عوام کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان ندا نگین. ناظرین, ووٹ, الیکشن, دھاندلی, یہ تین ایسے مختلف لفظ ہیں جو آپس میں بہت مماثلت رکھتے ہیں. کس طرح سے گزشتہ ہفتے ووٹ ڈلے, الیکشن ہوئے, آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ووٹ ڈلیں گے. ہم نے اپنے کانوں سے دھاندلی کی آوازیں سنی, کہیں پہ سنا سٹاپ دا کاؤنٹ, کہیں پہ سنا اپنے ووٹ کی حفاظت جا کے خود کرنی ہے, ووٹ کو پہرا دینا ہے. کوئی شک نہیں کہ ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی بہت اہمیت ہے, طاقت ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں مختلف جگہ سے, مختلف ممالک سے اس کی شکایات بھی موصول ہوتی رہتی ہیں. اور جو بائیڈن سلیکٹ ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر, یہ بھی عوام سے پوچھنے کہ ایک ووٹ کی اہمیت کیا ہے, اور امریکہ کے جو صدر منتخب ہوئے ہیں پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہے. چلے عوام سے پوچھتے ہیں. سر, ہم نا یہاں پہ سوال لے کر آئے ہیں, ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ووٹ کی بہت اہمیت ہے. ووٹ کس کو کیا دے, اس کو جو دے گا وہ بہت غلطی کی ہے, اس نے غلطی کر لی ہوئی ہے. کس کو دے کر؟ یہ جو ابھی وزیر ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہوا ہے, ہاں جی, یہ اس قابل نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا چیز ہوتی ہے. اچھا سر, بتائیے گا ذرا, ووٹ اور دھاندلی, ایک جمہوری ملک میں جب ووٹ کے اندر دھاندلی ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے ایک ملک کو؟ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. وہ تو بات یہ ہے, جو بھی کہے گا وہ کہے گا میں ہار گیا ہوں, وہ جیت گیا, دھاندلی ہے. ابھی ٹرمپ جو ہے ہار گیا تو وہ بھی کہہ رہا ہے جی ہار گیا میں فیصلہ کر رہا ہے, وہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہے, دھاندلی کی بات نہیں ہے. یہ ملک کا بادشاہ ہے, یہ بادشاہ لگتا ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے بادشاہ, کسی قابل ہی نہیں ہے. 2.5 سال اس نے پہلے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا پڑنے کا فائدہ. ملک کا سوچے, ملک کو اپنا کام کرے, جو کام 2.5 سال رہ گیا, ملک کا بہتر سوچے گا تو انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے. پہلے اس کو ووٹ نہیں دیا, اب تو 2.5 سال کام کرے گا تو اس کو ووٹ ملے گا, نہیں تو اس کو جوتے ہی پڑیں گے. سر, ہم یہاں پہ ایک سوال لے کر آئے ہیں, ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی کیا اہمیت ہے, اور پاکستان میں کس حد تک اس اہمیت کو سمجھا جاتا ہے؟ کچھ نہیں, ظلم ہوندا پیا جڑی حکومت آئی دی جی ہے, کوئی مطلب کاروبار دی دنیا دے رہا. دیکھو کی مجبوریاں نے لوکاں نوں, کی کام ہوندا پیا تے. مہنگائی ہے, تہاڈی مہربانی ہے, جڑا بیٹھا رہے اینو کہو کو خدا دا خوف کرو, غریباں تے ظلم کرنا چھڈ دیو, تے تہاڈی مہربانی ہے. یہ اسی کہندے پے ہاں, سمجھو. اے دیکھو نا ہن دودھ دے اے کی بھا ہو گیا, دہی ہے, اے بچیاں دیاں مجبوریاں دیکھو, اے دنیا غربت چ مر گئی ہے, سمجھو. ہاں سر, بتائیے گا آپ نے کس کو ووٹ دیا اور آپ کیا؟ میں نواز شریف کا آدمی ہوں. ہاں انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا آدمی ہوں, انشاءاللہ نواز شریف پہ ووٹ دینا میں نے. اچھا, مجھے سر یہ بتائیے گا ذرا, یہ جو ووٹ اور دھاندلی کا ہم سنتے ہیں, ایک جمہوری ملک میں جب ووٹ کے اندر دھاندلی ہوتی ہے تو اس سے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس ظلم ہی ہوتا ہے. پھر ظلم ہی ہو رہا ہے. ہاں, ظلم ہی ہو رہی ہے. تو سر پھر ووٹ کی کیا اہمیت ہوئی, آپ مجھے ذرا یہ بتائیے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف ہوگا بس. ہاں انشاءاللہ تعالی. بتائیے گا کون سے ملک میں رہ رہے ہیں, جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں آپ؟ جی, جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. اچھا, بتائیے گا ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ووٹ کی اہمیت تو بہت زیادہ, اگر کوئی سمجھے تو. آج کل جی سمجھے تو آج کل یہاں پہ سب طرف ووٹ چوری ہو رہے ہیں. ہم نے جس کو ووٹ دیا وہ تو ہوا نہیں ہے, سب دھاندلی کی ساری ٹوٹل جتنی بھی ساری کرپشن ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ خود پہرا دے دینا پھر جا کے. دھاندلی تو ہوتی رہے, یہ سارا کام ہے حکومت اور اپوزیشن کا. حکومت جو ہوتی ہے نا, اس کا سارا لنک ہوتا ہے حکومت سے, اپوزیشن کے ساتھ ہے. اگر حکومت آئے گی, جس حکومت میں آنا ہوتا ہے اس کو سارے لوگ ووٹ دیتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گلگت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کون جیتے گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر سی بات ہے مسلم نون جیتے گی. ظاہر سی بات ہے, کیسے جیت سکتی ہے وہاں پہ بالکل, کیونکہ وہ سارا علاقہ ہی سارا گلگت بلتستان یہ نون لیگ ہے. تو یہ شکایت بھی ہوتی ہے نا تھوڑی سی کہ جناب جس کی حکومت ہے اسی کے آگے حکومت آتی ہے, جیسے ہماری بھی پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے تو گلگت میں بھی پی ٹی آئی کی آگے ایسی شکایات موصول ہوتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاس دوسری سائڈ چین ہوتے وقت ٹائم نہیں لگتا, ظاہر سی بات ہے.
जीतना वो तो मुकद्दर की बात होती है, सारी बात मुकद्दर की होती है। तो हो सकता है इस बार नून लीग आ जाए, कोई इलम नहीं वैसे। अच्छा बताइएगा अमेरिका में इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि नई इलेक्शन हो, नई इलेक्शन हो। सर एक जमहूरी मुल्क है तो पूरी 5 साल हुकूमत चलाने देते हैं, यही वजह है कि हमारा उस तरह से मुल्क नहीं तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारे 5 साल कोई पूरा ही नहीं करके जाता। तो ये भी तो ठीक है ना कि एक हुकूमत आई उसको 5 साल पूरी करने दे, फिर अगले इलेक्शन से वोट की ताकत से अगली हुकूमत आए। नवाज शरीफ हुकूमत थी, इमरान कह रहा है कि जी मैं बेस्ट हूँ, उसने उससे हुकूमत नहीं करनी। ज़ाहिर सी बात है, इमरान कहते हैं मैं बेस्ट हूँ, ये नून लीग की हुकूमत कहते थे। अब इमरान आया, नून लीग कहते हैं हम बेस्ट हैं, वो खुद को बेस्ट कहते हैं। हालांकि सबसे बेस्ट हुकूमत नवाज शरीफ की रही है। महंगाई के लिहाज से देखें तो महंगाई जितनी होगी आपके सामने डबल है। एक चीज आ रही है, ये सूट आ रहा है, पहले हमें मिल रहा है 600 रुपए का, अब मेरा हमें 850 रुपए में होलसेल में। अच्छा मुझे बताइएगा, इलेक्शन हो गया अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, जो बाइडेन जीत गए हैं, पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है? पाकिस्तानी अवाम बड़ी दिलचस्प होती है अमेरिका के इलेक्शन में, जी ये आ जाए वो आ जाए, क्या लगता है आप? फायदा तो पाकिस्तान कोई भी नहीं है, कर्जई मुल्क है सारा। आपके सामने हमने कर्ज ही देना है, ये है कि जो भी आएगा कर्ज ही देगा हमें। कोई हालात वो मुसलमानों के लिए कहते हैं ना, जो बाइडेन सुना है कि वो मुसलमानों के लिए बेहतर होंगे, कोई उम्मीद नहीं है। देखिए पता चलेगा, वो आएंगे तो पता चलेगा, कुछ ये कंफर्म नहीं कह सकते। सर एक जमहूरी मुल्क में वोट की अहमियत क्या है, ये तो जरा बताएं हमें। वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में लोग समझते कम हैं। एजुकेशन के हवाले से नहीं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि देखें अभी इमरान खान साहब की हुकूमत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोगों को अहलियत बिल्कुल नहीं आई जब उन्होंने वोट कास्ट किया है। ठीक है, अभी देखें कि लोग कितना जलील हो रहे हैं बाज़ारों के अंदर, आप देखें। ठीक है, आपको समझ आएगी, लोगों से पूछें ये बात। जब चीनी 55 रुपये किलो थी तब आवाम कह रही थी बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, तब्दीली आए, अभी तब्दीली आई है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आवाम 110 रुपये 15 रुपये खरीद रही है, ये तब्दीली है। वही ना, हम जहाँ पे कोई भी बात करने जाते हैं महंगाई सब जरूर कहते हैं क्योंकि महंगाई हुई है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें, जाहिर सी बात है हमारे वोट की बहुत ताकत होती है एक जमहूरी मुल्क में, क्योंकि आवाम से हुकूमत बनती है। तो जो आवाम को इस बात की ना अहलियत ही नहीं है कि वोट की क्या मतलब के कदर कीमत है ना। ये लोग एक बिरयानी के डब्बे के ऊपर जो बंदा बिक जाता है, अपना ईमान बेच देता है, उसको क्या पता होगा। हम सर शिकायत करते फिरते हैं हुक्मरान करप्ट हो गया है, हमारा वोट किधर गया है, तो फिर हमारे अंदर कब तक शऊर आएगा? हुक्मरान का कसूर बाद में है, पहले लोगों का अपना, हमारा अपना कसूर है। हम इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, क्योंकि वोट की अहमियत है ना, खुद हम वोट देते हैं बिल्कुल। हमें इस बात का जब तक खुद नहीं पता चलेगा कि इसकी क्या कदर कीमत है हमारी एक वोट की, तो कैसे आगे मुल्क हमारा चले। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, हर किसी ने ये नाम जरूर सुना होगा, कोई क्रिकेट मैच हो, कोई पाकिस्तान का त्यौहार हो, ये सर हमें वहाँ पे जरूर मिलते हैं, चाचा ए पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने कहा कि चले इनसे पूछ लेते हैं कि जनाब एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर हमें बताइएगा एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या अहमियत है? जी पहली बात तो यह है कि हम जमहूरी मुल्क चाहते ही नहीं, हम इस्लामी जमहूरिया मुल्क चाहते हैं। ठीक है, रियासत मदीना चाहते हैं। दिस टाइम माई एज इज 70 और मैंने सारे जमहूरी और बड़े मार्शल देखे हुए हैं। तो सच्ची बात तो यह है कि तरीक किसी को माफ़ नहीं करती। जो इस मुल्क से वफा करेगा, इज्जत इस मुल्क में उसी ने पाई है। जिसने भी जो है ना इस मुल्क से गद्दारी की है, किसी की शक्ल कुत्ते की तरह कोई है, और जो आंधा गद्दारी करेगी कैसी कैसी शक्लें होंगी ये तरीक याद रखेगी। तो पहली बात ये है कि वोट जो है ना, ये मुझे अपनी कौम से भी गिला है कि मेरी कौम को सारा पता होता है कि ये आदमी गलत है, बदमाश है, जानी है, शराबी है, और हम उसको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? जी गलती करते हैं। मैं गुंबद खिजरा पहना हुआ है, मैं परचम से प्यार करता हूँ, ये गुंबद खिजरा से प्यार करता हूँ, मैंने कभी ऐसे आदमी को वोट नहीं दिया। सर वो कहते हैं हमारी आवाम बड़ी मासूम है जी, बिरयानी की प्लेट मिल गई उस पर वोट दे के आ जाते हैं। जी जो है ना, यही तो मैं कहता हूँ कि आदमी को बेज़मीर नहीं बाज़मीर होना चाहिए। आज भी आप सबसे बड़ी दौलत अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, 3 खजूरें खाएं तो 24 घंटे की एनर्जी मिल जाती है। ठीक है जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, प्यारा पाकिस्तान रहेगा। आज लामा इकबाल का यौम बर्थडे भी है 143, तो मैं आज सुबह से उनके घर में ही था, तो उधर कह रही हूँ कि आप माशाल्लाह से खूबसूरत भी लगते हैं इस लिबास में, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे कोई मैच हो, चाहे पाकिस्तान को कोई त्यौहार हो।
जी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना चाचा क्रिकेट, तो मैंने अपने वतन के लिए इस झंडे के लिए करोड़ों अपनी जेब से खर्चे करके ये पैदल लोगों में उठ मोहब्बत यही है। अच्छा सर बताइएगा, जो वोट और चोरी यानी वोट में जो धांधली होती है उससे एक जमहूरी मुल्क को क्या नुकसान होता है? जी मैंने अपने जो है ना मुल्क में एक इलेक्शन जो है ना 70 का था याया के दौर में, वो जो है ना इलेक्शन ठीक था। उसके बाद जितने भी है ना वो सारे कैसे कैसे वोट जो है घरों में ठप्पे लगा के सबको कौम को पता है। तो वोट जो है मैंने को कौम को यही कहना है कि वोट अच्छे आदमी को दे और डर के नहीं दे। डरना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। ये चाचा क्रिकेट ये झंडा पहन के पूरा इंडिया घूम के आ जाता है, 55 घंटे ट्रेन में सफर करके आ जाता है। से मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मजा आया आपसे बात के। बहुत सर बताइएगा, जमहूरी मुल्क में रहते हैं माशाल्लाह से आप, बताइएगा एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या अहमियत होती है? बड़ी अहमियत है। वोट हर चीज कर सकती है, हुकूमत को गिरा सकती है, हुकूमत को बना सकती है। पाकिस्तान में किस हद तक इस अहमियत को समझते हैं लोग? बड़े समझते हैं, मगर इस टाइम इमरान खान की हुकूमत को वोट देके हमारे को गिरा दिया अवाम को। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वोट और धांधली ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत ममासलत रखते हैं, यानी जहाँ पे वोट होंगे वहाँ पे धांधली होगी, ऐसे सुनने को मिलता है। ये मेरे अल्फाज नहीं, अवाम के अल्फाज हैं। तो आप बताइएगा कि जब एक वोट में धांधली होती है तो इससे एक जमहूरी मुल्क को क्या नुकसान होता है? नुकसान ही होता है, एक मैशियत कमजोर होती है, एक मुल्क का नाम कम होता है, ये होता है। और क्या होता है, एक हुकूमत अच्छी आए तो वहाँ नाम ऊपर जाता है पाकिस्तान का, और एक लीडर गंदा आए तो पाकिस्तान का नाम नीचे जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम समझती है इस अहमियत को कि आपको लगता है कि नहीं फारिग है पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से? नहीं फारिग क्यों है, बड़ी माशाल्लाह समझदार अवाम है। सर बताइएगा, हम ना सवाल लेकर आए हैं, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या अहमियत होती है, क्या ताकत होती है? जबरदस्त अहमियत होती है, पर ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। कैसे आते हैं ऊपर, ये वोट से नहीं आते फिर? ਉਹ ਇਹ ਵੋਟ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੱਡਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, घर का बिल नहीं दे सकते, बिजली के किराए नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, घर का किराया नहीं दे सकते। मुझे बताइएगा, जब वोट में धांधली होती है तो इस एक जमहूरी मुल्क को क्या नुकसान होता है? बड़ा नुकसान होता, गलत बंदे धांधली करके ऊपर आ जाते हैं, तो गलत बंदे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ धांधली करते हैं। तो फिर इस धांधली को कैसे रोका जा सकता है, हम रोक सकते हैं? अगर ईमानदार होइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ रोक सकते हैं। कैसे? पैसे वाली तो बात कोई नहीं है, अगर ईमानदारी है उन्होंने वोट देने और रले दे होंगे ने, पावरां नाल पैसा लाते हैं, वो संदूकड़ियां जो वोट गैप कर देंगे। हाँ जी, हाँ ऐसे ही होता है। फिर जाके पहरा दे हम तो पहरा दोगे तो फिर ही ना वोट दोगे, पहरा भी दोगे फिर भी इंज ही होना है। मुल्क के जेडे लीडर ने ना, जेडे हुण आए दे ने, तुसीं पुछो महंगाई वालों, तुसीं एवं गलत सवाल पे करते हो। हर जनानी नूं पुछो, हर बंदे नूं पुछो, जिन्नी महंगाई की थी उन्हें, जिन्ना बिजली का बिल पे आउंदा, लोग घरां दे किराए नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते। हम अपने वोट से ही लेकर आते हैं ना सर, के नहीं लेकर आते? वो पर लिया के वक्त पा लिया ना जान नूं, वो ते जान छुड़वाओ ना, सीधा सवाल करया करो, महंगाई के बारे सवाल पूछो। सर जरा बताइएगा, जमहूरी मुल्क में रहते हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह, ये जमहूरी मुल्क है? आप जमहूरी मुल्क बोलते हैं? इधर तो मार्शल लगा हुआ है। आप कौन कहता है? आप पहले अपना सवाल ठीक करें। सिविल मार्शल है ना। जमहूरी मुल्क कैसे होते हैं? अवाम पिस रही है, जलील हो रही है, किसी को पता ही नहीं, किसी को खबर ही नहीं है। कौन था? देखे ना इमरान खान को, देखें आप, ये क्या कर रहा है? एक बंदा भी बेचारा जो इधर किसी से इंटरव्यू लेके देख रहे हैं, हम दुकानदार हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा हो गई है कि अवाम रुल गई है। औरतें आती हैं अब चीज़ें लेनी, लेकिन बच्चों की लेके चली जाती है, अपनी नहीं लेती, कहती सिर्फ बच्चों का बुरा करना है। इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, उनको फिक्र ही कोई नहीं है कि अवाम के साथ क्या सलूक करना है। हम इंसान नहीं, हम जानवर हैं उनकी नज़र में, ठीक है ना? आप समझ रही हैं माशाल्लाह, हम जानवर से भी बदतर हो गए हैं। लेकिन जब ये अवाम निकलेगी इंशाल्लाह ताला, फिर इनका आखिरी दिन होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से। ये कर ले जो करना, जुल्म कर ले, जब ये अवाम बाहर निकल आई ये इधर नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। फिर मुझे ये बताइएगा, क्या अहमियत है फिर वोट की? वोट में जो धांधली होती है, क्या नुकसान होता है एक मुल्क को, ये बता दें। वोट की इधर इंसान की कोई अहमियत नहीं है, वोट की कैसे होगी मुझे आप बताएं? है कोई इंसान की कोई नहीं है, वोट किसी को पड़ता है, निकलता किसी का। देखें ये इस काबिल है वज़ीर बनने के, रात को कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है। ये तो मुझे कोई बनारसी ठग लग रहा है, ऐसे मुंह पे हाथ फेरता है
اور کہتا ہے جی میں وزیر اعظم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ایسے وزیر اعظم. جو تم بڑے ہو، اس ملک کے بڑے ہو، وزیر اعظم ہو، تم اچھی باتیں کرو، تمہارے ساتھ عوام کو کوآپریٹ کرے، لیکن تم بدماشوں والی باتیں کرتے ہو، گنڈے والی بات کرتے سر ووٹ دیا تھا آپ؟ انشاءاللہ تعالی دیا تھا. کس کو دیا؟ نواز شریف کو دیا تھا. انشاءاللہ مرتے دم تک نواز شریف کو ووٹ دیں گے. سر یہ امریکہ میں الیکشن میں دیکھے ہوں گے، وہاں سے بھی شکایات موصول ہو رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا میں عدالت میں جا رہا ہوں، دھاندلی ہو گیا ہے. ذرا بتائیے گا جو بائیڈن جو سلیکٹ ہوئے ہیں پاکستان کے لیے کیا مفادات ہوں گے پاکستان کے لیے؟ غیر مسلم کوئی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، ہم اتنی بات جانتے ہیں. خان صاحب ادھر گئے ہیں اور ٹرمپ کا بھی بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. انشاءاللہ ملک کا بھی بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا بہت بیڑا گرک کی ہے. جو جہانگیر ترین صاحب واپس آئے ہیں نا، میری اپنی جو ہے نا رائے یہ کہ کاف لیگ ان سے ناراض ہے، اس لیے وہ واپس آئے ہیں کہ ان سے جو ہے نا ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ اسے ڈیل کسی سے ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ ساری زندگی اکیلا رہا ہے اپنے ملک اپنے گھر میں. جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی نہ رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. سر گلگت میں الیکشن ہونے جانے، ذرا جلدی سے بتا دیں کون جیتے گا؟ نواز شریف، نون لیگ جیتے گی، پی ٹی آئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ جیتے گی. جتنا مرضی یہ زور لگا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی نون لیگ ہی جیتی تھی. یہ کرپشن سے آگے آئے ہیں، یہ کرپشن کے ماہر ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر انہوں نے 10% کرپشن کی ہے انہوں نے 90% کی ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ جیتے گی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ لوگ کرپشن سے آگے آ گئے ہیں، تو اس دفعہ پھر کیسے لوگ پیچھے رہ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن جیتیں گے، ادھر سے نون لیگ جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال. سر جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں آپ؟ جی جمہوری میں رہ رہے ہیں. یہ پنجاب ہے، پنجاب میں رہ رہے ہیں. تو یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. آگے پھر لاک ڈاؤن بڑھانا کہہ رہا ہے، وہ اپنے لالچ میں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کہہ رہا ہے کہ چوری کروں میں. ٹھیک ہے، ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ ہم نے نواز شریف کو دیا ہے. ووٹ کی کیا اہمیت ہے آپ کو لگتا ہے ایک معاشرے میں، ایک جمہوری ملک میں؟ ووٹ کی اہمیت تو ہمارے کوئی بھی نہیں رہی ہے. یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے کتنی بے تحاشا مہنگائی کاٹ دی ہوئی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا ذرا، ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی جب چوری ہوتی ہے، ووٹ میں دھاندلی ہوتی ہے، اسے کیا نقصان پڑتا ہے ایک ملک کو؟ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ملک بہت پیچھے چلے گیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ملک پیچھے چلے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری عوام سمجھتی ہے ووٹ کی اہمیت؟ ووٹ کی اہمیت ہم تو سمجھتی ہی، پہلے آپ نہیں سمجھتی. اب عمران خان نے جو کر دیا ہے نا، مہنگائی بہت کر دی ہے. مہنگائی سے وہ سمجھ چلے گئی ہے. اچھا اوکے کریں پھر. چلے جی، بہت شکریہ. سر ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں ہم؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. سر بتائیے کہ ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے ایک ووٹ کی؟ اصل طاقت ہی ووٹ ہے، مگر ووٹ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. ہم جسے ایم پی اے یا ایم این این کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ جا کے آگے ہمیں بیچتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. ووٹ کی اہمیت ان کو کرنی چاہیے کہ ہم لوگ غریب لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں، مگر ان کے کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کرتے. ان کے عوام سے باتوں میں آ جاتی ہے، ہم عوام بالکل وعدوں میں آ جاتی ہے، ان کی باتوں میں آ جاتی ہے آ کے، جس کو یہ مس یوز کرتے ہیں آگے جا کے. کوئی بھی پارٹی ہو، مطلب کہتے ہیں جی کہ ووٹ کو عزت دو. ہم لوگ ووٹ کو عزت دیتے ہیں، لیکن دینے والے ووٹ کو عزت نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں جی، آگے ہمیں جا کے کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں. بالکل. وہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے ووٹ کو جا کے خود آپ نے پہرا دینا ہے، تو جا رہے ہیں پھر ووٹ کو پہرا دینے آپ؟ جی ہم نے ووٹ کو کیا پہرا دینا ہے؟ ہم تو ووٹ دیتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں اس بندے کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے. آگے تو اس کا کام ہے نا، جو عوام کی. اب دیکھیے گا کہ کل کی بات ہے، یہ دودھ یہاں پہ اتنا مہنگا کر دیا. ہاں جی، ہڑتال ہوئی ہے، نام کی ہڑتال ہوئی. مطلب کہ سلیکٹ کروایا انہوں نے جی، ڈی سی صاحب کو بلیک میل کیا، بلیک میل کر کے، اور آپ نے مطلب کہ ریٹ مقرر کر لیے. ووٹ تو اپنا حق ادا کرتا ہے، مگر اب اس کو بھی چاہیے نا، گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے اور اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ سمجھتی ہیں. اگر اللہ کا جمہوری ملک میں رہتے ہیں. تو بتائیے گا ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی کیا اہمیت ہے، کیا طاقت ہے؟ ووٹ کی بہت اہمیت ہے. اگر ہم حق میں دیں تو اس کے ووٹ ہمارے لیے اوپر قرض ہے. ہم ووٹ اچھا دیں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. اگر ہم ووٹ نہیں صحیح دیں گے تو ملک پیچھے جائے گا. اس لیے تو پاکستانی عوام سمجھتی ہے ووٹ کی اہمیت؟ جی بہت زیادہ سمجھتی ہے، پر ہمارے ووٹ چوری ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہلائی میں لوگ ہے، ایک وہ ووٹ چوری کر لیتی ہے. ہلائی میں لوگ؟ جی. اچھا. وہ ووٹ چوری کر لیتی ہے، ہم دیتے ہیں کسی کو، نکل کوئی آتا ہے. اور 92 کوئی جاتا ہے. ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، نکل کسی کے آتے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے
पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा रोडों पे अपने हक के लिए। हाँ जी, पहरा देना पड़ेगा, फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये पीछे रह जाएगा। अच्छा, बस वोट चोरी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, आप भी बताइएगा, आप भी खड़े हुए हैं, अमेरिका में हुए इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप आप सदर नहीं रहे, उन्होंने भी ये शिकायत लगा दी है जनाब धांधली हुई है और जो बाइडन सिलेक्ट हो गया। ज़रा ये मुझे आवाम को बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है कि हालात उस तरीके से रहेंगे दोबारा? नहीं, हालात तो बेहतर होंगे, फ़र्क तो पड़ेगा क्यों वो पाकिस्तान मुसलमानों के हक में है। अच्छा। इसलिए वो बेहतर ही है, तो उसकी पॉलिसियाँ चेंज होंगी इंशाल्लाह। चलें, जो उम्मीद की जा सकती है अमेरिका की पॉलिसीज उस तरह से ही रहती है, जो मर्जी आ जाए, क्या ख्याल है? आपकी बात ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, वो पॉलिसी उनके पीछे से ही होती हैं, जो आगे वो आदमी चेंज कर लेते हैं। पाकिस्तानियों को बेहतर उम्मीद है जो बाइडन से कि नहीं? नहीं, बेहतर होगा, माइंड की भी बात होती है, माइंड चेंज होना बड़ी अच्छी बात होती है, उससे फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। सर, एक जमहूरी मुल्क पे रह रहे हैं आप? अच्छा सर, बताइएगा एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या अहमियत होती है, एक वोट की क्या ताकत होती है? वोट की ताकत तो है, मगर मकसद है ये जो अब की हुकूमत आई है ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, कारोबार हमारे तबाह हो गया, ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहने को दिया इसने। अच्छा सर, बताइएगा जब वोट और धांधली दो मुख्तलिफ लफ्ज़ होने के बावजूद भी बहुत ममासरत रखते हैं इस तरह से कि हमने सुना है कि जहाँ पे वोट डलते हैं वहाँ पे धांधली होती है, हम नहीं कहते, आवाम कहती है। तो एक जब धांधली हो जाए वोट में आवाम के, तो इससे मुल्क को क्या नुकसान होता है, आपको क्या लगता है? होती है और होती है, मुल्क तो नुकसान तो है, धांधली होती है। हाँ होती है धांधली, क्यों? ये तो इस वक्त तो बहुत धांधली हुई है। हाँ, तो ये तो सिलेक्टेड है ना। सर जी, क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्या धांधली रोक सकते हैं किसी भी मुल्क में? फिर अमेरिका में भी हमने सुना है ना धांधली, वो कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि धांधली भी है। तो फिर जमहूरी मुल्क में इस तरह की रवायात होती है, तो उनको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, या किस तरीके से ये रवायात खत्म कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? अब तो नून लीग को देंगे इंशाल्लाह वोट को। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो वो फिर कैसे? आप तो कह रहे हैं ना चोरी भी होता है वोट, तो फिर बच जाएगा? नहीं, बचेगा तो नहीं है, फिर बस थोड़ी देर की बात है। अच्छा ये बस एक यही है कोई। अच्छा सर, जाते जाते हमें ये बता दीजिएगा, जो बाइडन सेलेक्ट हुए हैं अमेरिका के नए सदर, तो आपको क्या उम्मीद अच्छी है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? बहुत अच्छा है, वो तो पाकिस्तान के हक में बात कर, ठीक हो गया, उसकी आवाज ही पाकिस्तान अच्छी उम्मीद है। हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक, हमारे साथ मौजूद है अगेन हमारी आवाम, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं आप? जी। अच्छा सर, बताइएगा एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या ताकत होती है, क्या अहमियत होती है? कुछ नज़र नहीं आ रहा, वोट देकर आपके सामने ही है, कोई राइट नहीं है आवाम के। अहमियत क्या है एक वोट की? अहमियत तो बहुत ज़्यादा, ताकत तो बहुत, लेकिन इस्तेमाल नहीं कोई कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? बस आपके सामने हालात जिस तरह के जा रहे हैं, टू मच एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आवाम को ऐसी लाइन पर उन्होंने लगा दिया, वो उठ नहीं रही, बिल्कुल नहीं उठ रही। तो आप बताओ फिर क्या करें बंदा? सर फिर अब वो अभी हम आवाम से पूछ के हैं सवाल, वो कहते हैं धांधली भी होती है, वोट चोरी हो जाते हैं, तो आप समझते हैं चोरी होते हैं, वोट धांधली होती है? दोनों चीज़ें होती हैं उसके। हाँ, आपको पता ही है, जिस राइट चल रहा है ना, वो कर रहा है काम, और उसने करना ही करना। तो फिर जब एक धांधली होती है एक वोट में, जो अवाम का हक है वो अदा कर देता है, फिर उसकी किस तरीके से आगे हिफाजत की जाए, या क्या नुकसान होता है उसका? मेरा ख्याल यहाँ तक यह है कि नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं। हाँ, जो जीत रहा है ना, या वो दोनों मेरी करके भी जीत रहा है ना, वो समझेगा मेरे लिए फायदा है। हाँ जी, लेकिन जो बेचारा हार गया, वो हार के भी जीत गया, क्योंकि वो बिल्कुल सही और राइट पे है। फिर क्या किया जाए, किस तरीके से अपने वोट की हिफाजत की जाए, अगर आप कहते हैं चोरी होता है? हाँ जी, तो मेरा ख्याल है इसको हुकूमत को चाहिए ज़्यादा। अच्छा। हम आवाम तो वोट दे रहे हैं, ठीक है, ये हुकूमत का काम है, जो उधर बंदे बैठे होते हैं उन्हें पता, जो काउंटिंग कर रहे हैं उन्हें पता होता है, हम तो अपना हम में से ही हैं, इंसान है वो भी। लेकिन वो क्या है, आजकल आपको पता है जो चल रहा है, जब वो चलता है ना तो सब पैसे चलते हैं तो सारे काम हो रहे हैं। वो जीता बंदा भी हार रहा है और हरा और भी जीत रहा है, तो क्या वोट की अहमियत है मुझे बताएं आप? नो अहमियत, ओनली पैसा। अच्छा। जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ। आपके पास कानून भी है, मेरे पास भी कानून, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सारा कानून उसके ऊपर डाल देंगे हम लोग। अच्छा, मुझे बताइएगा अमेरिका में हुआ इलेक्शन, जो बाइडन जीत गए हैं, हालात क्या लगते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हुई है? इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा, उम्मीद है, अल्लाह सुब्हान तआला बेहतर करने वाले हैं। पाकिस्तानी को उम्मीद है बेहतर
होंगे? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा, एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं आप? जी जी। अच्छा बताइएगा जरा, एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या ताकत है, क्या अहमियत है? ताकत बहुत है अगर ये धांधली ना करें। होती है? हाँ होती। अच्छा, तो कैसे रोकें फिर इसको ये तो रोकने के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा। और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि किस आदमी को वोट देना, देख के दें वोट। हवा में शऊर है वोट के हवाले से, वोट की ताकत के हवाले से, क्या आपको लगता है नहीं है? शऊर तो बहुत है लेकिन उधर बस नहीं चलता, यहाँ वोट डलता है, नहीं बस चलता है। वहाँ हम क्या करें? अच्छा। उधर बहुत कुछ होता है लेकिन अब इनको सोचना चाहिए। सही। अच्छा बताइएगा जरा, अमेरिका में हुए इलेक्शन, उस हवाले से भी हम पूछ लें, जो बाइडन जीत गए हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए बेहतरी हुई है इसमें? हाँ वो बेहतरी है। बेहतरी बिल्कुल। हालात बेहतर होंगे अमेरिका के साथ? इंशाल्लाह उम्मीद है। तो क्या पॉलिसीज में कुछ तब्दीली आएगी कि वही रहेंगी पॉलिसी? नहीं, आ जाएंगी तब्दीली। वो हरामी आदमी जो है ना वो हार गया, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। ये भी अल्लाह पाक ने एक बेहतरी की है। अच्छा चलिए बताइएगा, सबसे पहले एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं आप? जी जी इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा, एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या ताकत है, क्या अहमियत है, क्या लगता है आपको? ताकत, वोट की तो ताकत है, वोट की वजह से तो सब चल रहा है। अगर वोट नहीं होगा, अगर डकैत आ जाएंगे तो वो तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में है इसकी अहमियत, ताकत है इसकी? पाकिस्तान में अहमियत कम है। कम है, क्यों? क्योंकि सब लोग शोर मचा रहे हैं कि धांधली होती है। अच्छा, कैसे होती है धांधली? मैं भी बहुत सुन के आई हूँ धांधली होती है धांधली? धांधली होती है। अच्छा जी, सही हो गया। तो कैसे होती है? कैसे होती है? ब्लड जब वोट डालने जाते हैं, देते इमरान खान को हैं या नवाज शरीफ को देते हैं, उल्ट हो जाता है, वो कह रहे हैं ये ज़ाया हो गया है। अच्छा। जब गिनती होती है तो जिसको जिताना होता है उसके वोट ठीक हैं, जिसको हराना होता है वो कह रहे हैं कि गाड़ी पहुंच जाती है उधर पैसे लेके, तो फिर उस आदमी को पैसे दे, ये पैसे का काम है। तो फिर एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या ताकत हुई, फिर क्या फायदा हुआ? ताकत अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी मुल्क हमारा है, लेकिन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है वही आगे आता है। अच्छा जी। अच्छा, गिलगित में होने जा रहे हैं इलेक्शन, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीत जाएगी, मैदान ले जाएगी? जीत तो इमरान खान ही जाएगा क्योंकि वो हुक्मरान है। अच्छा। लेकिन वोट ज्यादा नून लीग को पड़ेंगे। अच्छा, वोट ज्यादा नून लीग को पड़ेंगे, जीत इमरान खान जाएगा, ये क्या? उसकी हुकूमत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा जी, सही होगा। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दें, जाते वक्त हमें भी बता दें, अमेरिका में हुआ इलेक्शन, जो बाइडन जीत गया, हालात ठीक लग रहे हैं आपको? पाकिस्तान की बेहतरी होगी कि वही हालात रहेंगे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ? जो बाइडन जब पीपल पार्टी का दौर था वो पाकिस्तान में 1-2 दफा आया है, तो उसके लिहाज से तो लगता है कि बेहतरी होगी। लेकिन ये है कि दिलों के भेद तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। खामोश बंदा है, हो सकता है कोई नुकसान भी हो जाए मुसलमानों को, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आप। सर बताइएगा जरा, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं? जी जी, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। अच्छा जी। सर बताइएगा, एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या अहमियत है, क्या ताकत होती है? देखिए, हम लोगों को ये तो कहा जा रहा है कि वोट को इज्जत दे या वोट से तब्दीली। हाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं जी वोट को इज्जत दे, और जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी वोट ही ताकत है असली, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, यही कह रहे हैं ना वो। लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि वोटर की भी कोई इज्जत होती है, ठीक है, और वो वोटर ने ही इज्जत बनानी है अपनी। हम लोग नालियों के ऊपर, गटरों के ऊपर वोट डाल देते हैं कि ये मेरा गटर बन जाएगा, मेरी सड़क बन जाएगी, मेरी नाली बन जाएगी, बिरयानी के पीछे भी। और हाँ साहब के भी वो क्या कहते हैं, बैठ के वो जो हैं वो एक पुरमसरत किस्म के जो उनके जलसे होते हैं, हम उसके पीछे भी वोट डाल देते। बीबीसी की शहादत के ऊपर भी वोट हमने डाल दिया कि जी, लेकिन ये नहीं सोचा किसी ने भी कि ये वोटर की भी कोई इज्जत होती है और वो वोटर ने खुद करवानी है। वो फिर कैसे करवाएगा अपनी इज्जत, ये भी बताइएगा जरा। मैं शौर होना चाहिए उसको ना, उसको पता लगे कि मेरे राइट्स क्या हैं, जो हमारे हमें खुद पता चलना चाहिए। अच्छा। हमें खुद पता चलना चाहिए कि ये जो नुमाइंदे हमने चुने, ये हमारे टैक्स के पैसों से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, ये हमारे मुलाजम हैं। लेकिन जब इधर हाजा आसिफ आता है तो हम उसके लिए आंखें भी बिछा देते और जान भी निसार कर देते, और वो गाड़ी में बैठा होता है, हम धूप में बाहर खड़े होकर शेर एक करी फेर, शेर एक करी फेर, या इमरान तेरे नारे वजन गए, या बीबी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार।
कभी सुना नहीं कि हाजा आसफ जी के अवाम तेरा जानसार मैं हूँ, मैं तुझ पे जान दूंगा, या इमरान या जो भी है, मैं सब हुक्मरानों को सबको इकट्ठा कर रहा हूँ। बताइएगा, अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे भी सुना है धांधली की शिकायत मसूल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, धांधली हो गई है। जो बाइडन आ गए हैं, क्या लगता है मुल्क के हालात बेहतर होंगे इससे? पाकिस्तान के साथ कोई फायदा होगा या वही पॉलिसीज रहेंगी? देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम समझ रहे हैं कि अमेरिका में तब्दीली जो आई है ना, वो पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ रही है नहीं, ऐसा कुछ भी। उनकी अपनी पॉलिसीज है, ये सोचना चाहिए। अमेरिका के बेनिफिट में जो चीज़ है उन्होंने वो करनी है। उन्होंने कभी भी वो नहीं करना कि हम पाकिस्तान को अमेरिका के बराबर ले आएँ। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को दबा के रखना है। जो बाइडन के आने से मैं ऐसे कर लूँ या ट्रंप के जाने से मैं रोने लग पड़ूँ, कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा हुआ था, वो गे है ना, फारग बैठे हुए हम लोग, बेवकूफ को मैं अपनी को बहुत इंक्लूडिंग कहता हूँ कि हम लोगों को पता नहीं कि किस चीज़ के ऊपर खुश होना है। खुश होना है कि मेरे राइट्स मुझे मिले, मुझे सेहत मिले, तालीम मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले। मुझे ट्रंप के आने से मुझे अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलेगी किसी के भी लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे मिजाज है आपके? ठीक है? हाँ ठीक है बिल्कुल। जरा हमें बताइएगा, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं आप? हाँ, सियालकोट में। अच्छा, तो बताइएगा जरा, एक जमहूरी मुल्क में वोट की अहमियत क्या होती है, क्या ताकत होती है? एक आम आदमी के वोट की ताकत होती है, बहुत खज्जल हो रहे हैं, बहुत ताकत होती है, बहुत खज्जल हो रहे हैं। पीपल पार्टी वाला था ते बहुत अच्छे दिन गुजारे ने। हुण असीं बहुत औखे हाँ, इज्जतां लुटियां जांदियां, इज्जतां खराब हुंदियां ने पईयां। असीं बहुत परेशान हाँ कि घुम्मन जेहड़ी ओ वापस आउणी चाहीदी है। नवाज शरीफ ही अगे आ जाए भावें। वोट किसको दिया था इस दफा? असीं इमरान खान नूं। लोटे बन गए सन, लोटे असीं लोटे बन गए सा। फरदौस डॉक्टर दी मैं सैकटरी हाँ, ਅਸੀਂ ਲੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਧਰ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ नहीं लाई कि डॉक्टर फरदौस। बताइएगा जरा, वोट की क्या अहमियत होती है एक जमहूरी मुल्क में? फरदौस ही खबर ले ले, डॉक्टर फरदौस ही खबर ले ले। इमरान खान ले मेरे गुर्दे खराब ने, मैं सह रही हाँ कि मैं इन्हां नाल मुलाकात करा, कित्थे करा? एक अमीरां दी हुकूमत है, गरीबां दी कोई नहीं। सर जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, बताइएगा जरा। जी हाँ, जमहूरी मुल्क। एक जमहूरी मुल्क में वोट की क्या ताकत होती है, क्या अहमियत होती है, जरा बताइएगा आवाम को। वोट की बहुत अहमियत होती है, ठीक है। वोट ही कौम की तब्दीली बदलता है, वोट ही मुल्क को संवारता है। वोट की बहुत अहमियत होती है। पाकिस्तान में अहमियत है इस चीज़ की? हम तो वोट देते हैं, हम कहते हैं हर वर्ग पर अच्छा इंसान आए जो महंगाई को कम करे। हमारे भी दिल चाहिए महंगाई के खिलाफ नोट सुनाना चाहिए। तो सर सुना है, मैं पीछे इंटरव्यू लेकर आई हूँ, सबका वो कह रहे हैं जनाब वोट में ना धांधली बहुत होती है, तो होती है ऐसा? बेटा वोट बंदा से इस्तेमाल कर, धांधली नहीं होती। वोट अपना खुद बंदा इस्तेमाल करे। वोट की बहुत अहमियत होती है, इसलिए वोट ही मुल्क कौम की तकदीरें बदलता है। सर बताइएगा, अमेरिका में इलेक्शन में पता है आपको इस हवाले से कुछ? जो बाइडन सिलेक्ट हो गया अमेरिका के सदर, क्या लगता है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे इससे? मेरे को इंशाअल्लाह हमारे साथ रब है, रब ही मदद हमारी करता है। अच्छा चलेंगे। ये हम अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं उम्मीद नहीं, बल्कि रब से उम्मीद होती है। जी तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे किए आवाम से सवालात, उनसे लिए जवाबात। जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे वोट डलते हैं, जहाँ पे वोट डलते हैं वहाँ पे धांधली होती है। ये अल्फाज मेरे नहीं, आवाम के ख्यालात हैं, फिर चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान। और अमेरिका में तब्दीली आ गई है सर। तब्दीली इस तरीके से आई है कि हर अमेरिका का सदर 2 दफ़ा मुंतखब हुआ है। कानून के तहत एक आदमी 2 दफ़ा अमेरिका का सदर बन सकता है, और इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 1 दफ़ा अमेरिका के सदर बनने का उन्हें एजाज़ हासिल हुआ है। जो बाइडन आ गया है, अवाम को बेहतरी की उम्मीद है कि अब पाकिस्तान के हालात इससे बेहतर हो जाएंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और हमने जी जनाब डोनाल्ड ट्रंप से सुना है धांधली भी है, किस तरह से कि मेरे वोट चोरी किए गए, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। अपोजिशन की जानिब से हम इस मुख्तलिफ अदवार में ये मौक़िफ़ अपनाते हुए नजर आई है कि अपने वोट को इज्जत देनी है, धांधली होती है, और ये धांधली किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बेहतरीन नहीं होती। तो क्या हर जमहूरी मुल्क में धांधली होती है? क्या हर जमहूरी मुल्क में ये रवायात होती हैं? और अगर होती हैं तो कब तक ये रवायात बरकरार रहेंगी? यही सवाल छोड़कर जाते हैं आपके लिए। जिंदगी रही, सेहत रही, होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।